I would love to deep dive into the examples. What is past life is past life. It is actually पिछला जन्म for people who believe in it. बहुत परेशान कर रहे हैं तो फाड़ के भले फेंक दो उस चीज को. And most important in today's day and age, stay away from this. Limit your screen time. And they came to me, they were very like 200% sure कि हाँ divorce चाहिए. When the husband showed कि मैं ready हूँ 200% effort डालने के लिए, wife भी पिघली. And who came to me with the intention of getting divorced actually went back and renewed their vows. एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 2-3 short tips, to heal themselves, to stay in the present. You have been into multiple kinds of cases, conflicts, जो तो बहुत ही ज्यादा कॉमन होंगे. आई एम 100%, मुझे ऐसी फीलिंग है, गट फीलिंग कि वो शायद सबसे ज्यादा आते होंगे. सेकंड, आपको जैसे एडिक्शंस लोगों को बहुत आ रहे हैं, ट्रॉमास एंड ऑल दीज थिंग्स. मे बी यू कैन शेयर विद अस 3-4 एग्जांपल्स. Definitely, definitely. So when I was starting out, right, as a hypnotherapist, as a NLP coach, और मैं बात कर रही हूँ around Jan 2021 types की, right? मैं किसी networking event में गई थी and I got introduced to a male. He was 27 years old that time and he was going through a lot of mental stress, right? And उनके जो friend है वो मेरे किसी friend के friend है. They are the mutual friends. तो the friend came and told me कि मैम मैंने सुना है कि आप ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह करते हो, क्या आप मेरी फ्रेंड से बात करोगे क्योंकि वो आजकल बहुत बुझा सा रहता है और पिछले 2-3 महीने में उसका वेट भी बहुत कम हो गया है सडनली, जबकि आई डोंट सी व्हाई दैट शुड हैपन. और जब किसी का ड्रास्टिकली ऐसे 2-3 महीने में वेट कम हो जाता है, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. तो आप थोड़ा उससे बात करोगे क्या? तो आई सेड डेफिनेटली, व्हाई नॉट. So during the networking, we said hi, hello, this, that. We exchanged numbers and then later on, I connected with that person. Aditi, you will not believe, 2-3 days later, the day that I connected with him, he told me, ma'am, आपने क्यों आज मुझे कॉल किया? आप तो मुझे जानते नहीं हो. मैंने कहा क्यों? He said, I had actually gone to the shop to buy sleeping pills and I was going to empty that entire bottle today because I'm going through a really bad phase in my life and there is not one person who can understand or support me. तो मन ही मन मैंने यूनिवर्स बोलो, गॉड बोलो, इंट्यूशन बोलो, मैंने कहा थैंक यू, मैंने राइट टाइम पे इसको फोन किया, राइट? सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो डिसीजन उसने चेंज कर लिया. But then I asked him what happened. If I may ask, I know you don't know me, but that is what I am. My job is to make you feel comfortable and give you the confidence कि आप मेरे साथ जो भी शेयर करोगे ये बिल्कुल प्राइवेट रहेगा, ये कोई थर्ड पर्सन के पास नहीं जाएगा. दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल स्पेस एंड जजमेंट फ्री स्पेस कि आप जो भी बोलोगे मैं यहाँ बैठ के जजमेंट नहीं पास करने वाली हूँ आप पे. एंड पता नहीं उनको शायद उन्होंने मेरी एनर्जी सेंस की या क्या हुआ, वो एकदम से रोने लगा. अ 27-year-old मैन क्राइंग लाइक अ बेबी. I said, what happened? And he said, can I share with you? And will you be able to help me? I said, please share with me. Will I be able to help me or not? My answer is, I can show you the path. मैं आपको I can show light on the path. आपको वो रास्ता चुनना है कि नहीं, ये आपके हाथ में है. Because I am not going to change your life. It's you who's going to take the right actions that will bring the change in your life. True. So he was going through something very traumatic in the sense he found out that he likes people of the same gender. And he comes from a very small village back in India. तो पेरेंट्स जो हैं वो 3-4 साल से उनको बहुत पुश कर रहे हैं कि आप शादी करो, और ये उनको ना नहीं बोल पा रहे हैं. तो अब उन पेरेंट्स ने क्या किया, इनको पूछे बगैर उनकी शादी की डेट फिक्स कर दी है. एंड ही इज टेरिफाइड. ही सेज मैं कैसे, किस मुंह से शादी करूं? एंड व्हेन ही ट्राइड टू टेल देम वंस कि मेरा ये प्रॉब्लम है, दे सेड ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, और तूने अगर इस बारे में एक और बार बात भी की
तो हम तुझे भी मार डालेंगे और खुद भी सुसाइड करेंगे. So he really genuinely didn't know what to do and what next. Because for him, he says, मैं आज वो शादी कर तो लूंगा, but I will never be able to have that connection with that person. और मैं अपनी जिंदगी तो खराब कर ही रहा हूँ, मैं साथ में किसी और की भी जिंदगी खराब कर रहा हूँ. And at that point, he really felt like he's stuck. He's reached that glass ceiling where he doesn't know what to do. So I literally had goosebumps, when I heard that. And I said, okay, let's work it out. And through the coaching and therapy, the person was able to identify why this behavior or why this nature came through. And the biggest question was, is this right or wrong? Now, as a coach, as a therapist, what's most important is we are not in a position to judge anyone. We are not God. There are certain societal norms about how we should behave, but for the person to be able to understand and relate to that, you have to show them the right path. So, when we did something like the regression, that is when the person went back into his early years and he realized where the root cause came from and why the mind had chosen to behave in a certain way. And when he understood the root cause, आप believe नहीं करोगे, to seek revenge, he went to the extent of उनके सामने उस टाइम पे एक टेबल पड़ा था. He almost banged on the table. He hurt himself a little bit. But because he got closure to the chapter, the mind undid the decision that was made earlier. एंड सडनली उनको अंदर से लगने लगा कि मे बी आई शुड चूज व्हाट इज राइट एज पर द सोसाइटल नॉर्म्स, जो अब तक उनको कहीं ना कहीं वो सता रही थी वो बात. तो आप जब एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हो तो मतलब इसी इसी जन्म की पास्ट लाइफ में जा रहे हो ना, पिछले जन्म में नहीं जाते हो, राइट? वेल, व्हाट इज पास्ट लाइफ, इट इज एक्चुअली पिछला जन्म फॉर पीपल हु बिलीव इन इट. अच्छा. Yes, yes. So in this experience, he was actually beautifully able to come back to his true nature, who he was. Because जब हम born होते हैं इस जन्म में, there is a blueprint that our mind has. Whether ओ. it's about our health, whether it's about our relationships, whether it's about the job or career that you will be into, whether it's money, whether it's adventure, whatever it is. And believe me, within a span of 4 months, I got an invitation saying मेरी शादी है और आपको पक्का आना है. आप नहीं आओगे तो मैं शादी नहीं करूंगा. So, so you found out through this past life regression therapy that this was not his actual nature. It was something in the past which made him inclined towards this or something like that. Correct. So true. So true. Okay. Now I would like to highlight a different experience. I work with a lot of couples, and I think in the past 5 years, I've worked with about 40 plus couples now. माय So गॉड, what इसके लिए तो अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा हमको. in itself, right? So let me share another story about a couple. Let's call them maybe Sam and Pat. Yeah, just for better understanding. Who is So male, who is female in this one? Sam is a male and Pat is female. Yeah. Okay. So when they got introduced to me, they've been living together for almost 16 years. Okay, but बच्चे नहीं हैं इनके, right? And जब वीकेंड्स आता है तो सोशल फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं, कभी क्लबिंग जाते हैं, कभी ताश खेलते हैं. तो अगर आप फ्रेंड से पूछोगे, एवरीथिंग सीम्स फाइन. हाँ, वो लोग तो मिलते हैं, दोनों अपना अपना जो भी कर रहे हैं. बट व्हेन वी एक्चुअली स्टार्टेड टॉकिंग, दैट्स व्हेन दे रियलाइज that they've been facing challenges as a couple. And when I say that, what I mean actually is they've been living under the same roof, but they've been sleeping in different rooms for more than 6 years. And they've not been talking to each other as literally a couple. Like, हाँ, ये बात कर ली, आज लाइट का बिल भर दे, आज ये ग्रोसरी कर ले, या whatever काम related चीजें हैं to maintain a particular lifestyle. But there was no real conversation, right? So when we Okay. sat down, and that's when they said, okay, they decided to open up. So Pat feels whenever Sam and Pat used to sit down and talk, he doesn't really want to listen to her. यार अभी नहीं, बाद में कभी बात करते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ. Or is this the time? This is not the time.
फिर कभी बात करते हैं। सो शी केम टू कंक्लूजन, हमारे जो भी हम बिहेवियर्स करते हैं, हमारा माइंड जो है इट गोज थ्रू समथिंग कॉल्ड एज अ मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। आपने सुना होगा कोई बोलता है उसने ये बोला तो मैं हर्ट हो गया, उसने ये किया तो उसने मेरा इंसल्ट किया, राइट? अब ये जो स्टेटमेंट है आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, उसने ये बोला इज वन थिंग, और मैं हर्ट हुई या उसने मुझे हर्ट किया इज द मीनिंग दैट वी आर गिविंग बिहेवियर। तो इन दिस केस अनफॉर्चुनेटली पैट हैड कम टू अ कंक्लूजन कि सामने वाला ही डजंट वांट टू लिसन टू मी एनी मोर। तो मैं इससे कोई भी चीज शेयर करती हूँ, वो या तो डिफेंसिव हो जाता है या फोन उठा के बैठ जाता है। तो अगर आप मुझसे बात कर रहे हो और मैं फ़ोन उठा के बैठ जाऊँ तो आपको क्या लगेगा? ये इंटरेस्टेड नहीं है मेरे में, या इसको हम्म, फ़र्क ही पड़ता है कि मेरी लाइफ़ में क्या चल रहा है? सो दैट लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्टेड क्रिएटिंग अ गैप, अ डिस्टेंस, अ इमोशनल वॉल बिटवीन देम, राइट? अब फिर मैं सैम से बात करूँ तो सैम कहता है मैं अपना खुद का बिज़नेस कर रहा हूँ। अब बिज़नेस जो जर्नी है, एंटरप्रेन्योर की जर्नी है, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। There are days when you have ups, there are days when you have downs. But as a man, हमें सोसाइटी ने क्या सिखाया है? तुम आदमी हो, you have to put food on the table. तुम अब बाहर क्या करते हो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, राइट? सो सैम सेज मैं इतनी मेरी स्ट्रगल्स हैं, मेरे बिजनेस में नुकसान हो रहा है, मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, और ये है कि जब देखो अपना लेके बैठी होती है, मैं कहाँ जाऊं? आई डोंट वांट टू बॉदर हर, इसलिए मैं अपने प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर नहीं करता हूँ। बट ओवर टाइम व्हाट हैपेंड, these small small frustrations started turning into bigger arguments, and the arguments eventually turned into big fights, leaving both the parties completely emotionally drained, to the extent कि जब वो कोई इमोशनल कनेक्शन ही नहीं रहा तो इंटीमेसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, which is the case unfortunately with most couple these days. The gap हम्म, big that there is no connection, there is no intimacy at all, right? And I would say one of the needs why you get into a relationship is also that emotional bonding, that connection. of अगर course. नहीं है तो फिर इंसान क्वेश्चन करने लगता है, why should I continue here? Right? So on the surface, they live together, they are sharing meals, they go out to meet friends, but on the inside, there is zero connection. There is only a big wall. Literally, imagine a big wall, right? Okay. Start working with them. What we work on is setting the right expectations, staying away from social media, because that is where again we start comparing with others. उसको देखो, उसका पति तो रोज उसको नई जगह लेके जा रहा है, वो लोग रोज नई मूवी देखने जाते हैं, रोज शॉपिंग पे जाते हैं, 4 साल में 4 बार वेकेशन पे जाते हैं, तुम मुझे कहीं नहीं लेके जाते हो, right? हम्म, What I say, healthy relations don't just happen, and relationships don't just break overnight. It requires consistent effort, connection, and empathy. तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है, एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करना जरूरी है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। सो द की true, पॉइंट true. नंबर इज, even the strongest couples face challenges, right? The key is not to avoid the problems, not to bury it under the carpet, but to learn how to navigate them using understanding, communication, and empathy. That's the goal. Right. हाँ, एक ऐसा कोई ब रिलेशनशिप है ही नहीं ना जिसमें प्रॉब्लम्स ना आए। नहीं ना, जहाँ-जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने का लग रहा है, वहाँ पे हम फेस ही नहीं करेंगे एक-दूसरे को। तो इस तरीके से दोनों को ये लगता है, मेल हो या फीमेल, दोनों को ये लगता है कि हम दोनों जब ऐसा करेंगे तो कम से कम लड़ाई तो नहीं होगी। प्यार नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो मत होने दो, लेकिन लड़ाई तो ना हो कम से कम। लेकिन जो आपने बात बोली उससे ये तो हो रहा है कि इमोशनल बॉन्ड नहीं बन पा रहा। हाउ मतलब हाउ हाउ इज़ द सॉल्यूशन देन? जी जी। तो सबसे पहले तो यही चीज मैं बोलूंगी कि अवॉइडिंग अ कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट द रियल सोल्यूशन। दिस इज द परसेप्शन आवर माइंड हैज क्रिएटेड कि हाँ आप इस चीज को अवॉइड करो, आप उनके साथ खाना नहीं खाओ या बात नहीं करो या जो भी है, तो आपको लगता है कि शायद प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी। हुँ, बट दैट इज व्हाट इज एक्चुअली क्रिएटिंग द इमोशनल वॉल, the हुँ, blockage between the relationship,
right? So the most important thing is to sit down and communicate. चाहे सिचुएशन कितना भी खराब हो, आपने नोटिस किया है जब आप शांति से कम्युनिकेट करते हो, सामने वाला कितना भी एजिटेटेड या गुस्से में क्यों ना हो, वो ठंडे पड़ जाते हैं, right? Because that's the effect of energy transfer between the two people. And that comes with spending a lot of time and understanding each other. So the minute you realize that there is a problem, sit and try to focus on what is the solution and how can I come to that happy situation, rather than just avoiding and running away and making the wall bigger and bigger. चीज में जो है, stress adds on. It is like fuel to the fire. And unresolved emotions, right? आप ऑफिस से आते हो एक बड़े गुस्से की मूड में या खराब मूड में, whatever, बॉस ने कुछ बोला, किसी कोलीग ने कुछ बोला, और अब वही चीज फिर घर में भी रोल ओवर होता है. तो आप ऑलरेडी इरिटेबल हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, आप घर पे आते हो, पार्टनर कुछ बोल रहा है, सडनली इवन दैट वन कमेंट इज लाइक अ ह्यूज माउंटेन फॉर यू, कि ये तो ताना मार रही है, ये तो मुझे समझती ही नहीं है, राइट? अगेन दैट क्रिएट्स दैट इमोशनल डिस्टेंस. नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन जो आपने बोला, कम्युनिकेट तो तब करेंगे ना जब उस स्टेट पे होंगे. ऑलरेडी दोनों फ्रस्ट्रेटेड है, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे, इसलिए तो अवॉइड कर रहे हैं. भी पता है देखेंगे, बात करेंगे तो लड़ाई होगी, तो अभी देख ही नहीं रहे. अब आप कह रहे हो कहाँ से कम्युनिकेशन होगा मीनाक्षी? वो बहुत जो डिफिकल्ट है. इमोशन है, वो जो इमोशन है, उस चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है क्या इमोशन है, और उसको कैसे मैं खुद को सेल्फ रेगुलेट करूं. अरे 90 सेकंड बताया था ना उन्होंने शुरू में ही. वही तो मुझे तो लगता है कि और भाई आप अगर अपनी आपको चीज को शादी पकड़ के करनी है, बैठे हो, आप बैठे हो पकड़ के, तो पूरी जिंदगी आप बैठे ही रहोगे. नहीं नहीं, ये ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, इसका ना कोई और उपाय नहीं है. नहीं नहीं, जिनको शादी बिल्कुल. करनी है वो सीखें कि रिश्तों के मायने क्या होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी. अगर आप शादी क्या, अगर आप दुनिया में आए हो तो स्ट्रगल तो करना ही है ना. प्रॉब्लम्स के बिना तो लाइफ चलने नहीं वाली है. और एकदम एक डिफरेंट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, अपनी अपनी जिंदगी के 20 30 40 साल, अब डिपेंड करता है लोग किस एज पे शादी कर रहे हैं, गुजार लिए, और वे उसने भी गुजार लिए, तो आप क्लोन तो हो नहीं. अब तो डिफरेंट पर्सनालिटी जब साथ में आ रही, क्लैश होना ही होना है. तो इसलिए पहले सीख लो, अगर आप शादी करना चाह रहे हो, थोड़े ट्यूशंस लो, थोड़ी कोचिंग लो, रिलेशनशिप्स को समझो, और क्या इश्यूज हो सकते हैं समझ लो, उसके बाद ही देन गो इनटू मैरिटल थिंग. और इसके लिए आपने जो एकदम परफेक्ट बोला, उसके लिए सबसे पहले खुद को समझना भी जरूरी है कि मेरा नेचर क्या है, राइट? हु एम आई एज अ पर्सन, मेरा वो क्या है, कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, मेरी वैल्यूज क्या है. सिंपल एग्जाम्पल, लेट्स से आज आप और मैं एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं. मे बी आप अप्लाई करोगे, शायद जो टाइटल है वो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगता है. मे बी शायद मैं अप्लाई करूंगी क्योंकि सैलरी बहुत अच्छा है. मे बी अंजलि अप्लाई करेगी क्योंकि वो बॉस को जानती है, टीम को जानती है, तो उसका ऑलरेडी एक रैपो बना हुआ है. मे बी somebody else will apply because it is very close to their office, to their house. So the ease of commuting becomes very good, right? So what is important to us? So when I look at a relationship, what is important to me? Am I looking for a companionship? Am I looking for a partner who can take care of all my needs? Am I looking for emotional security? It is very important to first have an awareness and understand yourself, which is the process of self-discovery. So for बहुत a अच्छा पॉइंट बताया आपने, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि first लोगों की important, जो डेफिनेशंस हैं, स्पेशली हम correct. यहाँ पे कपल्स की बात कर रहे हैं, मैरिजेस की बात कर रहे हैं, तो मैरिज की जो डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग है हर इंसान की अलग है ना. तो किसी के लिए मैरिज के मायने कुछ है, किसी के लिए कुछ है, पार्टनर की डेफिनेशन अलग है, उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, और यही चीजें को छोड़ के लोग बाकी सब डिस्कस करते हैं शादी के टाइम पे. Absolutely. Absolutely. स्टेटस क्या है, फैमिली कैसी है, Correct. ये कैसा है, वो कैसा है, सब So डिस्कस true. कर लेंगे, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मेरी पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरे लिए शादी के मायने क्या हैं, वो डिस्कस नहीं करते कपल. Point what you made, and so I just want to say something. Out of the 40 odd couples that I worked with, Aditi, as you rightly said,
70% ने तो they went back, they rekindled the spark in the relationship, but 30% actually realized कि we are very different people. हमारी personalities में जमीन आसमान का फर्क है, और हम कितना भी अंडरस्टैंडिंग कर लें, हम कितना भी कॉम्प्रोमाइज कर लें, वो बीच पॉइंट पे आना हर बार कंसिस्टेंटली थोड़ा सा चैलेंजिंग है. So they decided to part ways, but in a very amicable way. Because splitting of a relationship, of a marriage ending in divorce, it's a emotionally disaster. It's a roller coaster ride. बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, पैसा इन्वॉल्व होता है, दो फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं. So so that is also, so lot of people decide कि नहीं, मैं पूरी जिंदगी इसके साथ रह के अपने आप को उस नर्क, I cannot put myself into that situation. So it's easy to part ways and be happy. आप अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश. तो एक क्वेश्चन आ रहा है मीनाक्षी कि जैसे आपने बोला कि पार्ट वेज, तो आपके पास जब आते होंगे तो उस वक्त ये सामने वाले को एहसास हो कि नो वी नीड टू पार्ट द वेज, तो ये आपको नहीं लगता है कि यार मैं तो कुछ काम ही नहीं कर पाई मेरे पास आए और मैं इनका सॉल्व ही नहीं कर पाई, अगर अलग ही होना था तो फिर मेरे पास आकर अलग क्यों हो रहे हैं, पहले ही हो जाते वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. जब आते हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूजन और केओस होता है माइंड में कि आप एक डिसीजन पे नहीं आ पाते हो. उस टाइम पे आपको एक्चुअली पता ही नहीं होता है. जब आप एक इमेजिन करो, एक कपल ऐसी सिचुएशन में कि एक दूसरे का खून करना चाह रहे हैं, दे आर नॉट सीइंग आई टू आई, दे आर नॉट टॉकिंग विद ईच अदर एंड व्हाटएवर, राइट? द सिचुएशन इज सो बैड दैट दे आर नॉट इवन इन अ पोजीशन टू डिसाइड व्हाट दे वांट. So when we go through the coaching and the therapy process is when they understand, A, am I actually mentally ready and prepared to do the work that is required? आज हम एक नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, हम कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते हैं, बट एक रिलेशनशिप है तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं. बट दैट ऑल्सो रिक्वायर्स दैट टाइम कमिटमेंट एंड दैट एफर्ट कमिटमेंट की आपको कंसिस्टेंटली आपको ये टाइम और एफर्ट डालना है उस चीज में. सो दैट इज व्हेन दे अंडरस्टैंड देमसेल्व्स बेटर. द माइंडसेट किक्स इन सेइंग हाँ मुझे ये करना है कि नहीं, और कंसिस्टेंटली करना है कि नहीं. सो यस, खराब तो लगता है जब वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, वी आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, वेरी डिफरेंट पर्सनालिटीज एंड हमारा कोई तालमेल नहीं है. आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब लगता है, बट instead of them being together and again coming to the point where they want to murder each other and the whole family suffering, when it's not just their relationship, उनके मम्मी पापा अफेक्ट हो रहे हैं, उनके बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, उनके सिबलिंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, because then everybody has to choose sides. That becomes the next big thing. Then it is more of what is giving them the peace. ये लेकिन आई And थिंक then whatever they choose, supporting them through that journey is what is my role. My एब्सोल्युटली role is not to tell them what should be their decision broadly. Lot of times people do seek validations because they are scared to make their own life decisions, right? हम हमारी True. लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं, हम यूजुअली एक स्केप गोट, एक बकरा ढूंढते हैं, ताकि कल को ये डिसीजन गलत हो तो मैं बोल सकूं ये तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई है, True, राइट? वी true, ऑलवेज true. लुक फॉर दैट वैलिडेशन, दैट बैकअप प्लान. However, what we ensure in coaching is, A, जो भी आप decisions ले रहे हो, your life is your responsibility. वो सही या गलत है वो आपको ही पता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ आप जी रहे हो. आप मेरे साथ आओगे, बात करोगे हफ्ते में 2 घंटे या whatever, but rest of the life is yours to experience. Absolutely, So how is absolutely. my decision the right or wrong for you? So my thing is only to coach you to see what is right for you. So simple example, very simple example, right? I recently have a lot of cases where unfortunately one of the partners has stepped out of their marital relationship and they are having an affair with a third person. ये वो अनफॉर्चुनेटली एक एक क्या बोलो, स्टाइल हो गया है या पता नहीं लगता है कि ये करने से मुझे ज्यादा अटेंशन मिलेगा या रिस्पेक्ट मिलेगा, मुझे नहीं पता, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग इज अनफॉर्चुनेटली पीपल आर मूविंग आउट ऑफ देयर रिलेशनशिप एंड हैविंग एन अफेयर. सो रिसेंटली आई हैड एन एग्जांपल वेयर they've been married for 23 years. Kids have gone out to study, so the couple is living alone, right? But the husband travels very frequently और उनका हो गया अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर, जो उनके साथ अक्सर ट्रैवल करती है, right?
So then when they came to me, they were very, very like 200% sure कि हाँ divorce चाहिए. 200% sure. और दोनों बोल रहे थे हाँ divorce चाहिए. Right? And then when we went through the exercise of self-discovery and understanding what is important to each one of them in their marriage, and in that exercise, when they actually came to the part where they chose each other in the first place और उनका love marriage था, उन्होंने अपनी families को झगड़ा करके they ran away and they got married. And when they were reminded of all of that, it's literally as if वो husband suddenly उसमें से ऐसे बाहर नहीं आते हैं कभी कभार हम आते types. He suddenly came out and he had this realization, oh my God, you're right. I fought with my entire family for this person. And now I'm ready to give up on that person. And he decided, no, now I want to give my 200% to this. Absolutely. Was that easy? No, it was not. बिकॉज जब आपके साथ एक इनफिडेलिटी एक धोखा हुआ होता है आपकी शादी में, इट्स नॉट वेरी इजी फॉर बोथ पीपल. द पर्सन हु स्टेप्ड आउट इज कैरिंग अ लॉट ऑफ गिल्ट, इज कैरिंग अ लॉट ऑफ सैडनेस, एंड द पर्सन हु थिंक्स आई एम द विक्टिम, ये मेरे साथ हुआ है, they carry lot of anger, lot of sadness, lot of hurt. So it's a journey of forgiving and forgetting. But when the husband showed कि मैं ready हूँ 200% effort डालने के लिए, wife भी पिघल गई. And who came to me with the intention of getting divorced actually went back and renewed their vows. On the other, another couple who came to me, their intention was very clear कि हमें साथ में ही रहना है, but the biggest thing was for some reason or the other, उनके intimacy में इतने challenges आ रहे थे that there was zero effort from the partner. So eventually they ended up getting separated. नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जब इंसान समस्या में होता है उसका दिमाग वैसे भी नहीं चल रहा होता है, तो इट्स बेटर कि जिसका चल रहा है उसके पास जाकर बैठ जाओ, उसको बोलो भाई आप अपना दिमाग चलाओ और हमारी पूरी मैटर को पढ़ो, समझो और बताओ क्या सही है क्या गलत है. इसी चीज को अगर आप साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें, वेरी ब्रीफ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी. हमारा एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है और एक अमिगडाला होता है. और जब भी हमारा ब्रेन कोई डेंजर को परसीव करता है, उसे लगता है कि कोई डेंजर आने वाला है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो फ्लाइट या फ्रीज मोड में चला जाता है. एंड दैट इज द रीजन why we are not able to clearly see कि हमारे सामने क्या चल रहा है. एब्सोल्युटली. कि जो आंसर्स थे उनसे आए हैं, उनसे मुझे 2-3 क्वेश्चंस क्लियर करने हैं. वन इज दैट जो इतने केसेस आपने सॉल्व करे हैं उसमें what percentage of cases are the ones wherein there is something related to past life? And if we look at data, usually for anything and everything there is always a backstory. So I would say 100% of the times. Okay. कोई भी someone is entering a relationship with a lot of emotional baggage, उनका जो एक हम बोलते हैं ना वही कि हम ऑलरेडी एक फाइट या फ्लाइट मोड में, एक डिफेंस मोड में ही एंटर कर रहे हैं उस रिलेशनशिप को, तो सामने वाला जो भी करे हमें उल्टा ही उसको मीनिंग देते हैं. हम उसे हमेशा गलत परसीव करते हैं. स्पेसिफिकली चाइल्डहुड, किस चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो, ऐसे केसेस का परसेंटेज आपने कितना फील किया है? I would say 90% of the times. ओके. Yeah. एक और क्वेश्चन था मेरा कि based on your experience, the kind of clients that are coming to you, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने की वजह से वो आपके पास आने वाले लोग ज्यादा हैं, या जो इंडिविजुअली रह रहे हैं और उनके जो भी लव लाइफ या अफेयर लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के जो इश्यूज हैं उसकी वजह से वो लोग ज्यादा आ रहे हैं आपके पास? Most cases come to me through word of mouth क्योंकि मेरे जो प्रोफेशन में है, trust is the most basic factor, trust and confidentiality. When you look at specific cases, it is an equal mix. कि आप देखो, on one side the number of divorce cases are increasing, but on the other side the number of people who don't want to get into a relationship is also increasing, which is very sad because we as human beings, we are not designed to live alone.
हमें चाहिए एक सोशल कनेक्शन, हमें चाहिए एक कंपेनियन हमारे साथ। These are the people who are okay to make friends, have ONS, have multiple affairs. They are okay with all those things to meet their mental, social, physical requirements. They don't want to get into relationships wherein commitment is required. This is with the issue, major issue. And खासकर ऐसे शहर में जहाँ आप अपने घर से दूर हो और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो लोग बहुत जल्दी डाइवर्ट भी हो जाते हैं. Correct, correct. So this leads to another topic, which is obviously bad behaviors, I like to call them, or addictions, commonly known as addictions. So when you talk about that, the coping mechanism to these stressors becomes either you're smoking, either you're drinking, either you're vaping, or having multiple partners. Yeah, yeah. I think we had a very long conversation. और आई थिंक अदिति नेक्स्ट जब हम मीनाक्षी से बात करेंगे तो जो ये मॉडलिटीज हैं उनको टेक्निकली अगर एक एक लेकर मीनाक्षी समझाए तो आई थिंक वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. डेफिनेटली इन टर्म्स के मायने क्या है और इसमें आप करते क्या हो एग्जैक्टली वो आप बिल्कुल। समझा सकते हो एंड यू विद योर एग्जांपल्स एक्चुअली क्योंकि ये सारी टेक्निक्स आपने अपने क्लाइंट्स के साथ यूज करी हैं बट हमें तो बहुत अच्छा लगा इसलिए हाउ बहुत वाज अच्छा इट काम. इट वाज ग्रेट, इट वाज ग्रेट. मीनाक्षी, It यू was आर really वंडरफुल. very interesting. या थैंक इट यू वाज सो वेरी मच, थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि जो भी दो लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं वो एक्चुअली बेनिफिट करें इससे। एंड जस्ट वन थिंग दैट आई वांट टू टेल देम, व्हिच इज यूजुअली व्हाट आई टेल देम, आप माइंडफुलनेस, लिविंग इन द प्रेजेंट को अपनी ढाल बनाओ, अपना टूल बनाओ। एंड जब मैं बोल रही हूँ माइंडफुलनेस, इट इज व्हाट इज माइंडफुलनेस? यू टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड यू ग्राउंड योरसेल्फ, तब आपका दिमाग जो है वो 90 सेकेंड्स में शांत होता है। हाँ तो लाइक बिफोर वी एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 2-3 टिप्स जाने से पहले हमें Sure. दे दें हमारी ऑडियंस को कि वो डेली लाइफ में कैसे क्या क्या टिप्स यूज कर सकते हैं शॉर्ट शॉर्ट टिप्स टू हील देमसेल्व्स टू स्टे इन द प्रेजेंट. डेफिनेटली। सो सबसे पहले तो कोई भी सिचुएशन ऐसी आपको लगे कि आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, आप 1 सेकेंड के लिए एक लंबी गहरी सांस ले। इमीडिएटली आपका माइंड एक सिग्नल या एक इंट्यूशन बोलो, फीलिंग बोलो, वो बोलेगा कि क्या चल रहा है। एंड इफ इट इज अनहेल्पफुल, इफ द सिचुएशन आउटकम इज नॉट एज पर व्हाट यू एक्सपेक्ट, फिर आप सोचो कि मुझे क्या चेंज करना है, राइट? इट इज अ सिचुएशन वेयर इट्स एन इंटरैक्शन विद समवन, खाली उनपे गुस्सा दिखाने से या चिल्लाने से क्या ये सिचुएशन ठीक होने वाली है? नहीं। तो एक वो एम्पैथी होना भी बहुत जरूरी है। वो कब आएगा, एम्पैथी कब आएगा? जब आप अपने आप को समझो और सामने वाले को समझो। उसके लिए अगर इधर जो है वो साफ होना जरूरी है। इमोशनल बैगेज है तो वो एम्पैथी कभी नहीं आएगा। सो व्हाट आई आल्सो रेकमेंड इज जर्नलिंग, राइटिंग डाउन। आपको जो भी लग रहा है आप उस चीज को पेपर पे उतारो, क्योंकि क्या हो रहा है, अपनी सिस्टम से वो साफ हो रहा है, वो बाहर आ रहा है। और अगर आपको वो बहुत परेशान कर रहा है तो फाड़ के भले फेंक दो उस चीज को। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टुडेज डे एंड एज, stay away from this. Limit your screen time. Limit it. Very true. Directly, indirectly, it is affecting your sleep, it is affecting your thought process, it is affecting your mental health. ये 3 चीजें आप करोगे ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, आप देखोगे आपकी लाइफ इतने हद तक चेंज हो जाएगी, you will probably need a telescope to look back. Thank you, Meenakshi. Thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for taking the time out.